बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। और ये लेस थी जो हम इस पे लगाएंगे। ये मेरे पास कपड़ा है, बड़े पने का कपड़ा है। ये मैंने इसको लंबाई में फ़ोल्ड किया है। इस तरह से हम लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे। अब मैं इसको इस तरह से ट्रायंगल शक्ल में रखूँगी। मैं इसकी लंबाई 12 इंच लूँगी और इधर से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से 12 इंच पे मैं लंबाई लूँगी। ये हम अम्ब्रेला फ्रॉक का घेर की कटिंग कर रहे हैं और ये यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से इधर कटिंग कर दी है। अब ये मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से हम नापते जाएंगे, उसको निशान लगाते जाएंगे। अब कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। इस तरह के मैं 2 काटूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा घेर वाली बनाऊँगी तो इस तरह के हमें 2 काटना है। ये मैं थोड़ा इधर से सही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये तिकोना हो रहा है तो इसकी शेप थोड़ी सही कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने इसकी सही कर ली है। इस तरह के हम 2 काटेंगे। मैंने एक पहले काट के रखा हुआ है, एक ये मैंने आपको काट के दिखाया है। आप इस तरह रख कर देखें तो ये थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये हमने घेर की कटिंग कर ली है। अब हम इसके योक की कटिंग करेंगे। पहले मैं फ्रंट का योक निकालूंगी। ये इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। इसकी चौड़ाई भी मैं 7 इंच लूँगी और लंबाई भी मैं 7 इंच लूँगी इसकी। अब हम बैक साइड की योक निकालेंगे। चौड़ाई में हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि हमें बटन पट्टी बनाना है तो इसकी। ये इस तरह से हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। अब ये हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 4 इंच पे, और 4 इंच पे हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी इस तरह से गुलाई कर देंगे। इधर से मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा तिरछा काटेंगे और नीचे से हम हल्की सी गुलाई देंगे। ये हमारी योक भी कट गई है।
یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک پہلے کاٹا تھا، یہ ایک اور میں نے کاٹا تھا جو کہ آپ کو میں دکھا نہیں سکی تھی ویڈیو میں۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے میں نے یہ 2 کاٹے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے 2، یہ اس کی چوک بھی کاٹ لیا اور اس کا گھیر بھی کاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کی سلٹس کاٹیں گے۔ میرے پاس یہ کپڑا بچا ہے تو میں اس میں سے ہی اس کی سلٹس نکالوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی 3 انچ ادھر سے لمبائی ہے اور ادھر سے 5 انچ لمبائی ہے۔ اس طرح سے میں نشان لگاؤں گی اور اس کی کٹنگ کر لوں گی۔ یہ ہم نے اس کی سلٹ بھی کاٹ لی ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی اسٹیچنگ بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ پہلے ہم نیک کاٹیں گے، پہلے ہم فرنٹ کا نیک کاٹیں گے۔ یہ میں چوڑائی میں 2 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں فرنٹ کا نیک کاٹنے کے لیے، اور اس کی لمبائی میں 2.5 انچ رکھوں گی۔ اب اس کو میں گلائی میں نشان لگاؤں گی اور یہ ہم اس کو اس طرح سے کاٹ لیں گے۔ یہ ہم نے فرنٹ کا نیک کاٹ لیا ہے۔ اب ہم بیک کا کاٹیں گے۔ یہ میں 1 یا 1.5 انچ کا لوں گی بیک کا، اور یہ ہم نے بٹن پٹی کی الگ کر لیے ہیں دونوں۔ اب ہم یہاں کٹ کا نشان لگائیں گے۔ پہلے ہم بٹن پٹی بنا لیں گے بیک کی۔ یہ ہم اس طرح سے اسے فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے۔ اب یہ دوسرے سائڈ کے بھی ہم اسی طرح فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں ہم نے فولڈ کر لی ہیں پٹیاں۔ اب ہم ایک پٹی کے اوپر اس طرح دوسری پٹی رکھیں گے اور اس پہ سلائی لگائیں گے۔ یہ ہمیں یہاں سے بند کرنا ہے، 2 انچ پہ میں سلائی لگاؤں گی۔ یہ 2 انچ تک میں نے سلائی لگائی ہے۔ یہ دیکھیں، 2 انچ میں نے بند کر دیا ہے اس کو، اور یہ اوپر سے کھلا ہوا ہے۔ اس میں ہم بٹن لگائیں گے۔ یہ میرے پاس لیس ہے، میں اس کو اس طرح سے لگاؤں گی۔ یہ ہم آرم ہول کے یہاں سے 3 انچ چھوڑ کر نشان لگائیں گے۔ یہ پہلے میں فرنٹ کا نشان لگا رہی ہوں۔ سینٹر میں نشان لگایا پہلے ہم نے۔ اب ہم اس طرف سے بھی 3 انچ چھوڑ کر اسے ٹرائنگل میں ہم اس کا نشان لگا لیں گے اس طرح سے۔ اب ہم اس پہ لیس لگائیں گے۔ یہ اس طرح سے ہم لیس لگا لیں گے اس پہ۔ یہ میں نے لیس لگا لی ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے میں نے 2 ٹرائنگل شیپ بنائی ہے اس میں۔ اب ہم اس میں سے نیک کی پٹی کاٹیں گے اس کی۔ یہ اس طرح رکھ کر ہم کپڑے پہ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب 1 انچ ہم باہر کی سائڈ سے، یہ اس طرح سے ہم 1 انچ باہر سے اس کی کٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے میں نے اس کی نیک کی پٹی کاٹی ہے۔ یہ جو لیس ہے میں اس کے اوپر اس طرح سے لگاؤں گی کنارے پر اس کے۔
इस पर हम सिलाई करेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है इसकी। ये देखें, हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी। ये जॉब के उल्टे साइड पे मैं इस पट्टी को इस तरह उल्टी रखूँगी कि हम दूसरी साइड इसे फोल्ड करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। ये हमने पट्टी जोड़ ली है। इस पर मैं छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ जिससे पट्टी सीधी करना आसान होगी। ये इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। हम इसे प्रेस कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। ये देखें, ये हमने इस पर प्रेस कर लिया है तो ये इस तरह से सीधी हो गई है। अभी हम इस पे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने नेक तैयार कर लिया है इसका। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे और बैक का नेक बनाएंगे। ये हमने इसको तैयार कर लिया है योक को। अब ये हमारे पास जो इसका घेर है हम इसको जोड़ेंगे। ये इस तरह से हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे कट का, और इस घेर में भी हम कट का निशान लगा लेंगे सेंटर में। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह रखकर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम ये दूसरे बैक साइड पे भी हम इस घेर को जोड़ेंगे। इसको भी हम इसी तरह सेंटर पे रखकर इसको बराबर करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा बहुत कपड़ा जो बढ़ रहा है हम बाद में उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको जोड़ लिया है। ये थोड़ा इधर से कपड़ा बड़ा है तो हम इसे काट देंगे। ये दूसरी साइड से भी हम इसको काट देंगे। ये इधर से ही बड़ा है, हम इधर से भी कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसकी क्लिप जोड़ेंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर हम चुने देंगे। ये हमने क्लिप जोड़ ली है और इसको हमने नीचे से बारीक मोड़ा है और बीच पे हम ये लेस लगा रहे हैं। ये दूसरी पे भी हम लेस लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा रहे हैं। ये हम साइड की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। अब ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें, हमने साइड की सिलाई लगा ली है। ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है।
ये देखें स्लिप्स में मैंने चुने डाली थी ऊपर की साइड पे। ये देखिए इसका कितना ज़्यादा घेर बना है। इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा घेर बनेगा। अब हम नीचे से इस तरह बारीक बारीक मोड़ेंगे इसकी। ये हमने मोड़ लिया है और ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें इतना ज़्यादा घेर बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं।